Very good afternoon, everyone. I Applied Art Faculty of Visual Art, Banaras Hindu University, and Coordinator, Ministry of Education, Institutions, Innovation Council, Banaras Hindu University. Now I'm welcoming all of you, uh, MIC, IICS B2 session, and now welcoming also Mr. Kapil Parasar from Vium Digital Solutions Private Limited. Today he will interact with us with the topic is relation with successful startup founder entrepreneurs in campus. So that's a good thing. I would like to invite Mr. Kapil, and please start the session as per your convenience, and you will interact with anyone else. Kapil, Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. I'm audible. Kapil, I'm can you audible. hear? Yeah, I'm able to hear. I'm audible right now. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good afternoon to all of you, and thanks to Dr. Manish sir and all the members of. Yeah. Your sound is not Hello. coming. Right now, I'm audible. Yeah, you are audible. Please. Okay. Yeah. So when we starting this session, I want to thanks to Dr. Manish sir and all who are presenting this webinar. And I think it's not a webinar; it's a two-way communication module because entrepreneurship journey is a different journey. So when we saying that entrepreneurship, it's an I want to think that it's okay with English or Hindi, or I can use both. So the party, I want to know the participants is want to interact with Hindi or English. Both is good for participants. I'm audible. Yeah, you are audible. I'm requesting you if you use Hindi and English both will good for. Hello. I'm audible. Yeah, you are audible. Hello. 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 मेरी आवाज आ रही है विनोद जी? हाँ, अभी आई है थोड़ा सा, but your voice is not so clear. Okay, no problem. आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बातें कर सकते हैं. Okay. Thank you. I am audible right now. Yes, audible. Yeah. Okay, then let's start the journey because entrepreneurship is such a different type of thing because it's not an easy journey and it's your not. Video is not visible. Please open the video also. Yeah. Your video is not Hello. visible. Hello. I will start my video. Yeah. It will good for the participants also. And I am requesting to participants also, please open their video. So it will good for the interaction session. Your voice is not coming proper. Hello. Yes, sir. You may please start the session, but your face is not clear on the video. Okay, right now it's clear. Yeah, it's clear. Totally clear. Yeah. And So students, if you are interested, please open your video also. Okay. So let's start the session with a very good note, and it's my pleasure to sharing this session. First of all, the meaning of the entrepreneur, we know what is an entrepreneur and what is the entrepreneurship journey. They are the 2 points I want to discuss first. So let's start. What is entrepreneurship? Can anybody tell? I want this session two-way communication. So I want that. Can anybody answer what is the entrepreneur and what do you mean by an entrepreneur?
Anybody? Okay, let's start. Entrepreneur, you can say this is not an easy journey. And if you see that there are some government schemes, there are some grants, there are some incubation centers, and you want to do an entrepreneurship journey that you are studying and you have heard with so many hoardings that Startup India, Stand Up India, Skill India, and so many India. But that will not create your life. So it's your thoughts, it's your idea, you have to work. So please, my first suggestion is that you will always try to your own idea, not influenced by these hoardings or these, you can say, advertisement given by the different uh, channels and the government entrepreneurship needs. So please create and focus on your ideas. So how many you have your own ideas? So if you are studying in BHU and you are working with some professors and others, first you have to go to the market, survey in the market, and then identify the problem and then identify the solution. This is a way an entrepreneur will work. But if there are so many entrepreneurs that yeah, it's a very easy journey. Let's start. We have to go in the market. We will just say what is the problem, and we have just scheduled a solution. So it's not an entrepreneurship journey. Entrepreneurship journey is a different thing because it's not a easy journey. When the incubation centers and the government or you can say different government organizations are saying yes, we have provided this support to you, we have the incubation center, this and that, so it will not give a very good decision to you because you will survive only 1 or 2 years on the basis of incubation center and government support. So my humble request to all of you that never influenced by anyone, be focused on your own idea. And what is an idea? This because startup is nothing, MSME is nothing. The idea is the whole. Because and idea. This is only the start. Who are working. But what type of idea you have? So can anybody tell me what type of ideas you are working? Anybody? Manishi, I am audible. Hello. Yes, sir, you Manishi, are I am audible. okay, okay. Then I want that any student or anybody, I want that what type of ideas you have right now. I am requesting to Gaurav Misra, who already joined in this group. Please share your idea to Kapil sir. Gaurav. Gaurav. Gaurav Misra. Okay, not an issue. I think he's there is a technical some problem. So I hope that But he's he just already started a product. He already started a product. Sorry, the startup under the Kuda Bazaar name and startup with the waste material and other things. Gaurav, if you are audible, please join the session. No problem, sir. You may carry on. Hopefully, he will speak later. okay, okay. So the idea is that if you have an idea and you have identify a problem, so don't start the startup, your startup. This is my very good suggestion to you because at the time I have, if you have discovered the startup journey in India, there is an
91% or 93% failure rate of the startups due to their ideas, due to their suggestions, due to their identify the problems and making the solution. So it's very easy to solve a problem and it's very easy to create a solution. But it is very tough to sustain with your idea. So first of all, I will request to all of you, you will join entrepreneurship journey if you have a business module which is sustainable in the market, or I will suggest you that you will never join the startup journey if you have not a sustainable model and if your idea is not solving a large scale of problem and if it is not generating the revenue. So to start your startup journey with professors or incubation centers or government fundings, grants, this, I will suggest stop the idea because I want that there is so many ways and there are so many sources you can earn the money because I have seen that the more than 90% of the startups are just not able to continue their journey in the first year, second year, or third year. And after third year, the failure rate in India is more than 90%. After 2 years, is the more than 80%. And if you have crossed the third year, then it means you will survive. So, what is the meaning of that? The survival of your idea and your suggestions or your problems and your solutions. Because I want to say that you will focus on your idea, but your idea should be sustainable. So, first of all, I want to say that please check your idea with PDCA cycle. What is the PDCA cycle? Plan. Then you have to do a pilot project and there is a thing check whether the market is setting or is plan, do check and then take action. If you have not do and if you are not following this cycle, you are not sustainable for a year or 2 years because you will sustain with the government aids and grants only. And for incubation centers, I want to say, please do not try to fool the student because right now they are the pillar of our India. Most of the students will be in a very good place in job. So if your idea is not working, then try another idea. And if it is not working, then it means that you have not a guts of business. So you will find a very good job. You will get a job. And because there is a problem that you have not worked in the corporate sector and you have no idea of HR, you have no idea of the administration, you have no idea of the R&D, you have no idea of different streams and this is required. And if you say, yes, I have made this product, I have a list of thousands of products, I have made this, I have made this, and like a practical we are doing in the class 9th and 10th. So please don't spoil your life. This is my, you can say, it's not a very good suggestion you are thinking, but it's a very right suggestion for you. If your idea is working, then it's okay. But if it's not working, then try another idea. Why it is not working? And if it is not working, then it means you will leave and you will hire a job. You will be a very, it's a very tough time for you because in the first 3 years you will sustain with the government help. Then after that, what will happen? What will happen? It will happen only that you will not get any chance and you have lose so many government jobs, so many corporate jobs, and you have not done a very good job. So there is a failure rate of startups in India due to identifying the wrong solution and due to identifying the wrong problem statement. So my suggestion is that you will always try to do a survey first. Then you will apply your idea in PDCA cycle, plan, do, check, and action. And I want that you will start your journey with 2 columns. Please figure out these 2 columns in your notebook. This is why,
how and why. Why you are working on this idea? Ask yourself why you are working. And then if you know that yes, I am working this idea for this, then you should know how I will achieve my goal. How I will achieve the mission. So you will identify your life, your startup, your idea into two categories: why I am doing this and how can I do this. So it's, if you get the two answers, the why I'm doing this you will get. But how can I do this? It's a very tough question, and you will answer with your journey within a 1 year when you will interact with your professors. Then incubation part comes, then the mentors part comes, and they will they will suggest you, yes, it's good, and then you will go for the prototype. You will start as a pilot project, and then you will check the plan, do check, and then action. So it's my humble request to all of you, don't spoil your life for only 1 or 2 years. And don't try that, yes, I have made this and I have sell my idea in lakhs or 2 lakhs or 50 lakhs or 1 crore. This is not a startup journey. And right now there is a huge products and services in India are available and they are all failed because a startup working in the IITs will innovate something. In working in different some lower colleges, yes, they will innovate something. But it is market accessible or not? Right now, I have met so many mighty Ministry of Electronic and Communication scientists, and they have offered me so many ideas, not ideas, they have offered me so many products, but they have not got the business partners because they are not accessible in the market, and they are the very good products because they are developed by the scientists and the great scientists of India, but they are not market access because to develop, to innovate something is different. But I know only one definition of the entrepreneurship is that your idea is sustainable. You will earn your money through market. You will sustain for first 2 years from friends and families. And yes, if you are incubated somewhere, then the incubation center, choose the incubation center according to your steps. Don't try, yes, my friend has incubated there or somebody has incubated there and you will also get the incubation there. Please, you make sure that your product is and your services is applicable in that incubation center or not. And first, you will try to get a list that what supports the incubation centers is given by the previous startup. And if there is a junk or if there is a not a good relationship between the incubation centers and the startups, because the Atma, or you can say the soul of the incubation centers, is only the startup. And as the startups of the incubation center is not happy, then it means the incubation center is not doing well. So when you are choosing the incubation centers, you have to make a list. First of all, I want that if you are a student and you are not able to know what are the legal mistakes you are making in first for 2 years. So the incubation center who is providing the legal support to you, the incubation is supporting the market access support to you, and the incubation center who is providing the grant and funding support to you in step by step. So I want that you will select the correct incubation center. This is applicable to you. This is my the only suggestion to all of you, that never try to capture any idea or to think ideas. Yes, it will work, and you have to start, and you are just taking your time for years and years. Yes, if your idea is good, you have to sustain for few years without any support. Try this, and if you have got the support, then you will try that what support you have got from the incubation center. And if this is a one part of the startup, and if you want to be an entrepreneur like MSME, then note down one thing: you will start your journey with PMEGP support. Write down this. This is a very good scheme
for the new and existing entrepreneurs in India. This scheme is the only scheme which will provide the funding to you with the first step and not the funding. It's in the if you have got the 10 lakh rupees for service sector and if you will get the 25 lakh rupees for market manufacturing sector, then you have to give only 75%. 25% is a grant to you as an entrepreneur. So PMEGP scheme, I think it's and the golden egg for the startups, for the MSMEs. So I will suggest you that when you are starting your journey as an MSME or a local entrepreneur or a small entrepreneur, or if you want in a service sector or manufacturing sector, then you will please take please take the benefits of these schemes which is given by the Ministry of Small and Micro MSME sector. This is PMEGP scheme and it's available in the, if you will search on the Google, you will you can say download the application form and you will apply for the funding within 5 minutes. And it is approved and your very soon if your idea is good and they will select and the bank will fund accordingly. So this is a very good step. And if you have made this, make your product or your service available in the market after doing the survey, after making a problem statement, and then you have make a solution for this and checking your solution with PDCA cycle, then you will register your product or service into JAM. Please don't note down. This is the main and the important part of your journey in your life because this is a, you can say, best market access program available, which is available right now in this present scenario. I think JAM is, there are only two schemes which is the golden egg for the startups. One is the PMEGP scheme for the early startups, and the second one is the JAM. Because if your product is ready, if your solution is ready, then how to check that your solution is good or not? Then you have registered your solution and your product into JAM portal. And if anybody, you can say select your product government because you will get the B2B customer. You know about the B2B, business to business. And business to business means what is this? बिजनेस टू बिजनेस का मतलब हो गया जैसे एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट से कोई चीज खरीदेगा. B2G means business to government sector because right now government is a very big sector and I want that they have this is a very good screen to fill the gap between the government and the you can say entrepreneurs, startups or small startups because you will get your product ready and you will sell it through JAM. So I will suggest you then you will first you will focus on your idea, then do the market survey, then you have to write down the problem statement, what problem you are solving. उसके बाद आप देखिए आपका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जो आपने प्रोवाइड किया है. देन यू हैव टू चेक आप जिन लोगों से आपने सर्वे किया था पहले तो उन लोगों ने बताया होगा आपको, दे हैव टोल्ड यू कि ये सर्वे में यस सर आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होगा, ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है. तो फिर आप उसी सॉल्यूशन को जिन लोगों से आपने सर्वे किया उनके पास जाइए. सबसे पहले यू विल चेक कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था प्रोडक्ट में उसको यूज करने के बाद उनका फीडबैक और सजेशन क्या आया. Then you will came to know that what type of journey will go after that step. It means then you will choose the plan to check and action cycle to make sure that your idea is good. So this is my complete you can say you can say this is my complete experience which I have got from last 17 to 19 years in Digital India program. We are the first movers. We are the first movers who have digitalized the audio, video, and right now we are digitalizing the health and the smart care sector. We are focusing on the smart living. So, but when I surveyed, I have got that we have a very good entrepreneurs in villages and rural areas. And I want that you will, right now you have to focus on the agri-tech products and the health products because it's a time.
of agri and health. Because in COVID time, if you have seen, all the markets has gone, but सबको आटा चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद हेल्थ चाहिए, कितने सारे काढ़े बिक गए, कितने सारी सर्विसेज बिक गई, कितना सारा सब कुछ हो गया, टर्नओवर कितना बढ़ गया। तो दिस इज अ टाइम आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ हो, चाहे वो कैसी भी जर्नी हो, एग्री प्रोडक्ट्स कभी भी खत्म नहीं होगा और हेल्थ कभी खत्म नहीं होने वाला है सेक्टर। और यदि आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है, प्लीज मेक श्योर जब भी आप कुछ करने जाएं, योर आइडिया इज सस्टेनेबल और नॉट। बिकॉज आज की डेट में जो मैंने देखा है, गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए केवल इंक्यूबेशन सेंटर्स कुछ नहीं करते, कुछ स्टार्टअप्स को लिया, अपने अंदर रखा 1-2 साल, कुछ दिनों में कुछ प्रोफेसर्स ने अपने अंडर में रखा। बिकॉज आई हैव मेट सो मेनी IIT Delhi professors is my advisor, there are so many IIM professors is our advisor. So I have seen that in different IITs also, not in the so many small institutes. उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टअप जर्नी इज एक्सपर्ट, आफ्टर 1 or 2 years उनको बता दिया जाता है, इतनी सारी ग्रांट्स मिली, बिकॉज आप नए बच्चे होते हैं, आपको किसी अच्छे से आदमी से भी मिला दिया, अच्छी सी पार्टी में भी लेके चले गए, आपके कार्ड्स एक्सचेंज हो गए, उन्होंने आप पे हाथ मिला दिया, तो उनके लिए वो बहुत चीज होती है, क्योंकि नया बच्चा है भी करके निकला, उसको लगता है कि देखो मेरे सामने इतने सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर ये शोशाबाजी से बचिएगा, केवल 2 चीज पे फोकस कीजिएगा, अपना आइडिया, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपका सॉल्यूशन। यदि आपकी ये तीनों चीजें हो जाती हैं, तो मेरे कहने का मानिएगा, आप इंक्यूबेशन सेंटर बाद में जाइएगा, पहले फंड लीजिएगा, और फंड लीजिएगा PMEGP फ्रॉम MSME। इसके बाद आप करिएगा सीधे जैम पे अपने को रजिस्टर, और इसके बाद कुछ इंक्यूबेशन की तरफ जाइएगा, ठीक? और इसके बाद भी व्योम ने बहुत सारे वेबिनार, आप बिलीव नहीं करेंगे, देयर आर मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स इन कोविड टाइम। जब हमने अपना एक वेबिनार किया था BHU के, इसके अंदर 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, बिहार से थे, आपका ऑल ओवर इंडिया से बहुत मोर देन 200 और 500 कैंडिडेट्स हैव जॉइंड दिस वेबिनार, जिसके अंदर हमने MSME के डायरेक्टर, NSDC के डायरेक्टर दोनों को इनवाइट किया, और उन्होंने बताया कि सब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी कमी है स्किल्ड मैन पावर, और सबसे बड़ी चीज है कि आप कभी भी ज्वाइन मत कीजिएगा इस सारी चीजों को, कि स्टार्टअप इंडिया, कौशल कुशल इंडिया, ये सारे स्लोगन्स, ये सब कुछ केवल पार्टी के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं होते, क्योंकि इनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना होता है। इन सारे स्लोगन्स में आके अपना काम शुरू मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? आपको बहुत कुछ नाकामी मिलेगी इसको। यदि आप बैंक के भरोसे जाएंगे तो आपको बैंक लोन नहीं देगा पहले, अपने आइडिया बेस पे आप कहीं भी कुछ करने जाएंगे कुछ नहीं होगा। यदि आपको करना है तो सबसे पहले अपना आइडिया बनाइए, सबसे पहले अपना सॉल्यूशन रेडी कीजिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, PDCA साइकिल चेक कीजिए, फिर अभी कंपनी फॉर्म मत कीजिए, सीधे PMEGP पे जाइए इंडिविजुअल, और 10 लाख यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो लीजिए, 25 लाख यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो लीजिए। इसके बाद आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, और स्टार्टअप शुरू करने के बाद फिर आप अपनी कंपनी फॉर्म कीजिए, बिकॉज आपके पास पैसा आ चुका है। उसके बाद फिर आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाइए, और इंक्यूबेशन सेंटर चूज करते समय प्लीज, बिकॉज राइट नाउ यदि सबसे बड़ा किलर कोई इंडिया के अंदर है स्टार्टअप्स का, देयर आर ओनली इंक्यूबेटर्स, बिकॉज कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह एक एक इंक्यूबेशन सेंटर खुल गया है। और मेरे पास आप दिन में चाहिए तो मैं आपको मेल फॉरवर्ड कर दूंगा, कम से कम 100 से 500 मेल आती हैं हर एक इंक्यूबेशन सेंटर की, हमारे यहाँ इंक्यूबेट हो जाइए। आपको देखना क्या है, व्हाई दे आर मेल्स आर कमिंग, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है। दे आर ऑल ऑफरिंग दिस एंड दिस एंड दिस इज नॉट अ मार्केट। आपको इन सब चीजों से बचना है, आपको अपना इंक्यूबेशन सेंटर खुद चूज करना है, और चूज करने से पहले आपको ये देखना है कि वो आपको लीगल सपोर्ट देता है नहीं देता है, बिकॉज लीगल सपोर्ट आपको सबसे पहले चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि वो जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो खाली अपने लिए प्रोवाइड कराता है, अब स्टार्टअप को एज ए खुद अपना स्टार्टअप जो भी उसके अंदर इंक्यूबेटेड है स्टार्टअप, वो उसको खुद की कंपनी मानता है या खाली अपना काम चलाता है। क्योंकि एक इंक्यूबेशन सेंटर चलाने के लिए उनको स्टार्टअप चाहिए, तो ऐसा तो नहीं वो आपका मूर्ख ही बनाते जा रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से। तो इन सब चीजों को बचाना है, और आप
मानेंगे नहीं कितनी सारी डेथ्स हुई हैं। देयर आर सो मेनी स्टार्टअप जो खुद में आत्महत्या कर गए कुछ साल के बाद। देयर आर सो मेनी स्टार्टअप जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो उन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उन्होंने ये गलतियां नहीं की है, जिन्होंने रोए हैं पर डे कि हमने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ, उनके लिए केवल दो ही रॉन्ग डिसीजंस थे। पहला, खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, उसको पीडीसीए साइकिल पे नहीं गए, फंडिंग हमने पीएमईजीपी या एमएसएमई से नहीं मिला, और पहले हम इंक्यूबेशन सेंटर में गए, इंक्यूबेशन होने के बाद भी कोई सब रॉन्ग इंक्यूबेशन सेंटर आपने चूज किया। तो आई विल सजेस्ट यू, प्रोफेसर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, इन सब के चक्कर में मत आइए, एक दिन लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अपनी जिंदगी को खुद चलो, अपनी जिंदगी को खुद चलो, क्योंकि सरकारें कभी एक आएगी दूसरी जाएगी, प्रोफेसर आज एक आएगा दूसरा जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर में आज एक बैच आएगा दूसरा जाएगा, पर जो आपका स्टार्टअप है, जो आप खुद है, आपको जिंदगी अपनी खुद से देखनी। तो मेरा तो यही डिसीजन होगा, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि व्हाई मैं जो स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ एंड हाउ। यदि आपको दो का आंसर मिल जाता है देन यू हैव टू गो एंड राइट डाउन पीएमईजीपी एंड जैम। क्योंकि इस गवर्नमेंट की यदि सबसे अच्छी मुझे कोई स्कीम लगी तो सबसे अच्छी स्कीम लगी मुझे पीएमईजीपी और जैम, और यदि सबसे बुरी स्कीम कोई लगी तो आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल दिए विदाउट एनी without any checking or without any trusting to their management and without taking their reviews with the startup। मैं तो कहता हूँ हर इंक्यूबेशन सेंटर का 6 महीने में स्टार्टअप से रिव्यू हो, यदि स्टार्टअप्स आर हैप्पी तो इंक्यूबेशन सेंटर चले, नहीं तो वो बंद हो। दिस इज माय सजेशन। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके पास कुछ नहीं है हाथ में, तो राइट इंक्यूबेशन में जाइए जहां से आपको लीगल सपोर्ट मिले। फंड आप पीएमईजीपी और इनसे लीजिए, क्योंकि आप शुरू में इंक्यूबेशन सेंटर से मांगते रहेंगे, यदि अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर होगा तो ग्रांट देगा, नहीं होगा तो वो आपको बहकाता रहेगा। जहां भी आपको लगे कि बहकाना आपके साथ हो रहा है, इट मीन्स दे आर स्पॉइलिंग योर लाइफ और एक जिंदगी को खत्म करने। मैंने देखा अपनी आंखों से स्टार्टअप खत्म होते हुए और जिंदगियां खत्म होते हुए। तो प्लीज सेव योर लाइफ, अपना आइडिया स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी विल स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने प्रोडक्ट को पीडीसीए साइकिल पे चेक कीजिए, अपने प्रोडक्ट को जैम पे कीजिए, क्योंकि मुझे दो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे अच्छे लगे, सीएमईजीपी और जैम। इंक्यूबेशन 3rd नंबर पे आता है, और बिलीव मी जो हाल आज की डेट पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का है, देखा होगा आपने हाल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, कुछ कॉलेजेस के अंदर अब प्राइमरी स्कूल बन गया है, कुछ ने इंटर कॉलेज खोल लिया है, जो मैंने देखा है। व्हाई, क्यों बन गई सारी चीजें? क्योंकि वो नहीं चला पा रहे। सेम हाल अभी आने वाले समय में इंक्यूबेशन सेंटर्स का होगा, यदि उनकी रेटिंग्स और यदि उनके क्वालिटी ऑफ वर्किंग को हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये काम हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि व्हाई 90% आर फेलियर रेट ऑफ द स्टार्टअप आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मेनी $million इन इंक्यूबेशन सेंटर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू विल डू नथिंग। आपको सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है, अपना आइडिया, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने सॉल्यूशन। उसके बाद आपको काम करना है पीडीसीए साइकिल। यदि आपकी पीडीसीए साइकिल फिट बैठती है तो आपको पीएमईजीपी की तरफ जाना है, एमएसएमई की तरफ जाइए मेरे कहने से। स्टार्टअप और इंक्यूबेशन को बाद में चुनिए। एमएसएमई आपकी माँ है, ये मैं कहता हूँ, एम से एमएसएमई है और एम से माँ है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बचा लेगी। क्योंकि पीएमईजीपी से आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, और एज ए अर्ली स्टूडेंट आप इंटरेस्ट नहीं, आप उसको पे भी करने में डिफिकल्ट महसूस करोगे। एंड दिस विल प्रोवाइड यू द ग्रांट, 25% ग्रांट, जो आपको केवल 75 पे करना है, 25 आपको पे नहीं करना है, वो भी आपको इंस्टॉल्स में करना है। तो इट्स अ वेरी गुड, गो फॉर एमएसएमई for PMEGP scheme and then register your product and service in JAM, and then you will came to know that what type of services and products we are offering is good, it's available in the market, or it is market accessible or not. If it is market accessible, then go for the incubation and other schemes of the startup. But believe me, यदि आपको sustain नहीं हो पाते हो आप,
2 साल या 1 साल के लिए कैसे भी करके फ्रेंड से, फैमिली से, खुद से, तो बिलीव मी अपना आइडिया चेंज कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं आप सही ट्रैक पे हो। और यदि आइडिया आपका एक आइडिया से नहीं, दूसरे आइडिया भी आपका फेल होता है, थर्ड कीजिए, लेकिन यदि फिर भी ज्यादा रहता है तो एट द पॉइंट ऑफ दिस एज आई विल सजेस्ट यू विल गो फॉर ए जॉब। दिस इज माय वेरी गुड सजेशन टू यू कि आप खुद को सस्टेन कैसे कर पाते। और बिलीव मी इन्वेस्टर्स भी बाद में यही देखते हैं कि जो आपने मैंने देखा है जो हमने लोगों ने गलती की है, हमने आज स्टार्टअप खोला और नेक्स्ट डे पे हम इन्वेस्टर खोजने जाते हैं, क्योंकि हमें यही मेंटरिंग में नहीं पता है कि अभी इन्वेस्टर की मीट क्यों करा रहे हैं। अभी तो पहले हमें पीएमईजीपी पे जाना है, अभी हमें पहले सीड फंड पे जाना है, अभी हमें ग्रांट्स पे जाना है, अभी हमें सब चीजों पे जाना है फॉर फंडिंग एंड फाइनेंशियल। बट सब कुछ चीजें छोड़ दीजिए। Be focused on your product, be focused on your service, be focused on your PDCA cycle, be focused on your solution and problem you are solving for the community. So this is a way for a sustainable startup journey. So my main focus is that please save your life, please save your friend's life. If they are choosing for a path of entrepreneurship, tell them it's a very good journey. It's a very tough journey and it's a very enjoyable journey if you will follow the 3 rules. What is the 3 rules? You will identify the why and how rule. Second, you will identify your problem you are solving. Third one is this is the second, and the second is that what is your solution. And the third and the most important thing is that your product, your service is accepted by the market or not. And if it is accepted, then register it with them and then go for the incubation center. Choose the correct incubation center, and yes, this is a very good journey. But the problems, क्योंकि मुझे लगता है जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं, यदि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, then yeah, there is a valley of death for startups. 90% of startups in today are in valley of death due to these wrong decisions. So please make the right decision. Make your life into parts. Why and how? If you have any question, please ask. Hello. Any questions? Hello. I'm audible. Yes, sir, you are audible. Any Participants, questions? if you have any questions, please ask. Gaurav, Pooja, Rahul, Tanisha. Himanshu, Vaishnavi, Rahul. If anyone have any questions, please ask. Very Sir, good afternoon, sir. on behalf of that, I am asking one Yeah. question. Hopefully, Rahul is asking something. Yeah, Rahul, please ask. Yeah. या सर सर आपका जो सेशन था वो तो बहुत अच्छा लगा। आपने जो जनरल थॉट्स या जो जनरल प्रॉब्लम होते हैं वो आपने शेयर किए इसमें, और लगता है सर मैं भी। जी राहुल बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, हाँ बताइए कह रहा हूँ बताइए सर। राहुल। सर मैं अभी कुछ पर स्टार्टअप के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे जी ने जो आज लेक्चर दिया उससे मुझे समझ में आया कि किस तरह से ये शुरू किया जाए या सोचा जाए, किसकी से दिया जाए। तो ये मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और हेल्प भी रहा, तो थैंक यू सर इसके लिए। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं यदि यही आप कुछ कहना शुरू चाहता करना हूँ। चाहते हैं, हाँ तो यदि आप कुछ शुरू हाँ करना चाहते हैं तो राइट डाउन द 3 थिंग्स। पहले तो आप डीआईसी लिखिए, अपने लोकल एरिया में डीआईसी कहाँ है। ये डीआईसी कहते हैं हिंदी में जिला उद्योग केंद्र। ठीक है सर, यहाँ से आपको पीएमईजीपी की स्कीमें मिलेंगी। डीआईसी सबसे पहले यहाँ जाना शुरू कीजिए आप। उसके बाद आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि यदि आप बैंक्स में जाएंगे तो लोन मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट रेट होगा।
यहाँ आपको पैसे मिलेंगे 25% रिबेट के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले आप DIC जाइए, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ बनाना सिखाएंगे यदि नहीं आता है तो। और उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। काम शुरू करने से पहले मार्केट में सर्वे जरूर कीजिए। सर्वे करने के बाद ये अब आप खुद में सर्वे कीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना कि मुझे इंक्यूबेशन को दिखाना है कि स्टार्ट। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम जो कुछ काम करते हैं दिखाने के लिए करते हैं। आधे से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया के अंदर करता है क्या है कि वो इंक्यूबेशन सेंटर, प्रोफेसर, माँ बाप सबको दिखाने के लिए करता है। वो दिखाना नहीं, आपको खुद करना है। तो एक तो आप DIC जाइए, ये आपको सॉल्व करेगा। दूसरा आपको करेगा मार्केट सर्वे कीजिए। मार्केट सर्वे करने के बाद आप व्हाई एंड हाउ, व्हाई में लिखिए मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहते हो। सेकंड चीज हाउ। हाउ मतलब अब आपको क्वेश्चन करना है अपने से कि ये जो मैंने काम किया है पता तो लग गया क्यों करना चाहता हूँ, कैसे होगा, हाउ इट इज वर्क। आप अपनी स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख लीजिए। स्टेप फर्स्ट में DIC किया, स्टेप 2 मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई किया, स्टेप 3 मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, मैंने मार्केट के अंदर सर्वे किया नहीं किया, सर्वे किया, यस टिक दैट। फिर उसके बाद में गया कि यस मैंने सर्वे हुआ, सर्वे में जो लोग हैं उनका ये आया सब कुछ करके। उसके बाद आप जाइए अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए कि जनता की या जिस जगह आप इस सॉल्यूशन को देंगे उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मेरे सॉल्यूशन से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है मास में या नहीं होती है। यदि नहीं होती है, आपकी मैंने बताया कि मैं MIT में साइंटिस्ट के साथ रहा हूँ इतने दिन, उनके पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको विद इन अ सिंगल कॉल दिला सकता हूँ। वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन के बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स उनसे लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में सस्टेनेबल नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट में बिजनेस करना इज अ डिफरेंट थिंग और इनोवेट करना इज अ डिफरेंट। ठीक है ना, वो बनी बनाई खिचड़ी हमारे पास है, हम आपको परोस सकते हैं, लेकिन इट इज सस्टेनेबल और नॉट। बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है यहाँ ना करे, अमेरिका में कर जाए, वो इतना महंगा प्रोडक्ट बना। ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स। दूसरी चीज है, सबसे पहले आप जाइए PMEGP कीजिए, उसके बाद अपना सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्यूशन को मार्केट में चेक कीजिए कि ये सॉल्यूशन कितने लोगों को हेल्प कर पाया। यदि कर पाया तो आपका पायलट होगा PDCA साइकिल, देन इस प्रोडक्ट को आप जैम के अंदर रजिस्टर कीजिए। ठीक है सर, तो ये 3 चीज आप ध्यान रखिए। इसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर में आप जाइए और ये देखिए कि वहाँ लीगल सपोर्ट आपको मिलता है नहीं मिलता है। फ्री में लीगल सपोर्ट आपको फ्री में मिलना चाहिए इंक्यूबेशन सेंटर पर। आपको मेंटर जो मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है, वो विद इन अ वीक दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। एल्स क्या होगा, आप जाएंगे, आप पैर छूते रहेंगे, आप नमस्कार करते रहेंगे प्रोफेसर के, वहाँ के अधिकारियों के, और उनकी चापलूसी करते रहेंगे, सर आप तो बिल्कुल भगवान है, आप ये कर दीजिए, पैर छू लेंगे, आप ग्रांट दिला दीजिए, आप ये फंडिंग करा दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग अपने प्रोडक्ट में नहीं रह गया। अब आपका दिमाग सिर्फ ये रह गया कि इतना वहां से आएगा, उससे मैं अपनी जिंदगी 1-2 साल चलाऊंगा, फिर 2 साल बाद कुछ नया आएगा तो फिर मैं अपनी जिंदगी चलाऊंगा। तो आपकी जो फोकस्ड एरिया था अपने प्रोडक्ट से, सॉल्यूशन से, वो हट गया है। ठीक है, बिल्कुल देखिए जो प्रोफेशनल हो, अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर हो, आपको कुछ दे सके, उसमें जाइए। एल्स द इंक्यूबेशन सेंटर्स आर द किलर्स ऑफ द स्टार्टअप, ये ध्यान रखिएगा। 90% इसीलिए मर जाते हैं स्टार्टअप, क्योंकि राइट टाइम पे राइट सपोर्ट नहीं मिलती। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Sir, my name is Tanisha. Sir, I have a question. Yeah, Sir, Yeah. अभी मतलब I am a student. अब सर इसके बाद अगर मैं कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहती हूँ एंड मतलब कि मैं अप्रोच लोगों को करना चाहती हूँ कि मतलब सो दैट दे कैन हेल्प मी, मीन्स मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ, तो सर मैं उनको कैसे मतलब सर्च करोगे? या सर मैं अब उनको अपनी बात के लिए, क्योंकि आजकल सर जैसे कि बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी बहुत Hello. अच्छे लेवल पे चले गए हैं एंड मतलब दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बॉटम से स्टार्ट किया, बहुत नीचे से, एंड नाउ दे आर मतलब इन वेल प्रोग्रेस्ड एंड, तो सर मतलब अभी उस एज के हिसाब से मतलब क्या सर कैसे अप्रोच लोगों को कर सकते हैं हेल्प के लिए, मतलब कैसे वो मेरी हेल्प करें एंड दे कैन बिलीव मी, मतलब इट्स अ स्टार्टअप तो इजीली कोई गॉट इट क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बताया कि स्टार्टअप किस चीज से बना होता है, आइडिया से। सबसे पहले आपको आइडिया चूज करना है, पर्सन चूज नहीं करना है। आपका आइडिया क्या है?
क्योंकि लोग बाग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, लोग बाग आपको आइडिया को सपोर्ट करने वाले हैं। दे विल नॉट सपोर्ट टू द तनीषा, दे विल सपोर्ट योर आइडिया। तो फर्स्ट इन अ स्टार्टअप, इन अ एमएसएमई, इन अ स्मॉल स्टार्टअप, अभी मैं गांव में हम लोग करते हैं एमएसएमई के साथ, हमने अभी पूरे 1 मंथ का एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स चलाया। एंड यू कांट बिलीव कि 25 से 30 जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी वहां से जनरेट हुई, उनको ट्रेनिंग दी गई, अभी और भी ट्रेनिंग ले रही है। उन्हें सिंपल चीजों की ट्रेनिंग दी गई। अभी कोविड चल रहा है तो अभी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको सैनिटाइजर कैसे बनाना है, मास्क कैसे बनाना है, आपको जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल में उनको कैसे आपको करना है, या उनको कैसे बना सकते हो आप, ठीक है ना, पीपीई किट कैसे बना सकते हो। उन्होंने स्टार्टअप जर्नी शुरू कर दी, और वो जितना शहर में नहीं कमा पाते गांव में कमा रहे हैं, ठीक है ना। कुछों को एग्री प्रोडक्ट से शुरू कर दिया। तो आपको अपने अंदर ढूंढना है कि मैं किसमें काम करूंगी, फिर यदि मुझे ये काम करना है तो मेरा आइडिया क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप खुद देखिए आप किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल है तो टेक्निकल आइडिया ढूंढिए, नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल आइडियाज दे दिए। गांव से बिलोंग करते हैं तो एग्री फील्ड के अंदर मैंने बताया सबसे ज्यादा आइडियाज है उसके अंदर टेक्नोलॉजी के। हेल्थ में बहुत सारे आइडियाज है, देयर आर सो मेनी वेज। अभी मैंने बताया पीपीई किट, ये आपका सैनिटाइजर और डिफरेंट डिफरेंट फॉर कोविड टाइम, और ये बाद में भी चलने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट। आप एक बार कीजिए एमएसएमई, मैंने बताया एमएसएमई इज योर मदर। यदि आपको कुछ भी शुरू करना है आप एमएसएमई पे जाइए प्लीज। अपने प्रोफेसर, अपने इंस्टीट्यूट, सब कुछ बाद में जाइए, सबसे पहले एमएसएमई ऑफिस जाइए, वहां लोगों से मिलिए। डीआईसी मैंने बताया, डीआईसी फंडिंग के लिए जाइए, लेकिन उससे पहले आप एमएसएमई में अप्रोच कीजिए, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है और एक राइट डाउन कर लीजिए ट्रेनिंग, जॉम तो प्रोवाइड कराता है एमएसएमई के साथ फ्री में। दिस इज ईडीपी प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। दिस इज गिवन बाय द एमएसएमई, हर जगह मिलती है। आप एमएसएमई ऑफिस में जाइए, अपने को वहां एनरोल कराइए और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लीजिए। वो आपको मार्केट भी देंगे, वो आपको मार्केट एक्सेस भी देंगे, वो आपको फ्री में ट्रेनिंग भी देंगे, वो आपको फंडिंग भी प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको मेंटर भी प्रोवाइड कराएंगे। आई थिंक एमएसएमई इज योर मदर, नोबडी कैन हेल्प यू। तो आपने पूछा मुझे जाना है, मुझे किन बड़े आदमियों से मिलना है, जिनसे मुझे बात हो सकती है, वो आपको सबसे जोड़ देंगे, बिकॉज दे हैव ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 40 लाख प्रोफेशनल्स। गेटिंग माय पॉइंट तरीसा? Yes, sir. Yes, sir. आपको कहाँ जाना है उसके लिए? एमएसएमई। सारे 200 से 500, आप वेबसाइट पे आज एमएसएमई को सर्च कीजिएगा, 200 से 500 प्रोजेक्ट्स वहां हैं। आप देखिए मुझे इस प्रोडक्ट में जाना है तो मुझे ट्रेनिंग चाहिए होगी, आप जाइए एमएसएमई ऑफिस और उनसे बोलिए कि मुझे ईटीपी की ट्रेनिंग कराइए, तो वो नियर बाय ट्रेनिंग कराएंगे। व्योम भी कराता है एमएसएमई के साथ मिलके बहुत सारे गाँव के अंदर, शहर के अंदर। आप खुद भी किसी एमएसएमई के पास जाइए, वो करा देंगे आपको, ट्रेनिंग भी कराएंगे, फंड भी कराएंगे। बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको आपके साथ जोड़ देंगे, आपके प्रोडक्ट्स को बिकवा देंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, दे आर योर पे। आप मान लीजिए एमएसएमई ही इस देश को चला पाएगा और कुछ नहीं चलाने वाला, बाकी सब में हमने बहुत पैसा बर्बाद किया। एनीथिंग मोर? No, sir. Thank you, sir. हेलो, Yes, sir. राइट डाउन ईडीपी प्रोग्राम, एमएसएमई, ठीक है। और Yes. डीआईसी में तब जाना है जब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन नहीं जब आपको ग्रांट अप्लाई करनी है 10 से 25 लाख के लिए। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Anyone have any other questions? हेलो सर। हाँ जी सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो सर इंडिविजुअल में रजिस्टर होना चाहिए या एलएलपी के थ्रू होना चाहिए सर? कौन सा इन फ्यूचर बेनिफिशियल है? देखिए सबसे पहले आप एमएसएमई जाइए, वहाँ ईडीपी ट्रेनिंग लीजिए, ठीक। यदि आप अभी से कंपनी रजिस्टर करेंगे तो पीएमईजीपी की स्कीम नहीं मिल पाएगी आपको, समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप इंडिविजुअल जाइए एमएसएमई में, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लीजिए, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डीआईसी जाके 10 से 25 लाख के लिए अप्लाई कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। जब सब कुछ आपका चल जाए तब आप अपनी कंपनी, वो अपने आप बताएंगे एमएसएमई वाले, वो अपने आप आपको चार्टेड अकाउंट दे देंगे, अपने आप आपको बताएंगे एलएलपी खोलनी है, डबल खोलना है, क्या करना है, ठीक है। खुद से कोई डिसीजन मत लीजिए, खुद ना किसी मेंटर के पास जाइए, क्योंकि उनको अपना नहीं पता है आपको क्या सलाह देंगे। उसके पास जाइए जिसने निरमा से लेके
और दुनिया की सबसे बड़ी MDH मसाले तक को जिसने बनाया है, ठीक है ना, ये खुद कुछ नहीं बने, MSME के थ्रू बने हैं। आप MSME पे जाइए तो सही कभी, PMEGP और जैम और MSME, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड द इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड द स्टार्टअप्स आर द किलर्स ऑफ इंडिया, नॉट ऑल इंक्यूबेटर्स बट द फ्यू इंक्यूबेटर्स, क्योंकि अधिकतर बहुत अच्छे भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहुत ही अच्छे, लेकिन इन सब में बाद में जाइए, पहले इतना काम कीजिए, और यदि इससे पहले आप चले जाते हैं तो आपको वहां से बहुत कुछ कम चीजें हासिल होंगी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू सर। Sir, I have one last question. Like sir, कि हमारे पास बहुत जैसे फंड्स हैं, फंड्स लिमिटेड है, तो सर जो MSME है, मतलब विल दे हेल्प अस कि हम लोग सही से फंड्स कैसे एलोकेट करें, या अगर हमारा कोई फ्रेश स्टार्टअप है तो हम लोग बहुत मतलब सो दैट वी कैन टेक राइट डिसीजन, मतलब कि हम लोग कैसे फंड्स को सही से एलोकेट बिल्कुल करें। और बिल्कुल 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 मैडम, दे विल एलोकेट यू मेंटर, दे विल एलोकेट यू मेंटर्स, दे विल allocate corporates, they will allocate you a guide also, and they will give a training of 1 month with the government certification, and you will got the funding also. वो आपके प्रोडक्ट्स को बनाने से लेके बिकवाने तक आपका हेल्प करेंगे। ओके सर, ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, व्योम का अपना जो हमारा व्योम डिजिटल सर्विसेज है, आप जाइए खुद रजिस्टर कीजिए, व्योम स्मार्ट केयर बाय पी, इसके अंदर आप जाके खुद को रजिस्टर कर दीजिए और इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए डाल दीजिए, MSME के साथ आपको खुद जोड़ दिया जाएगा उससे। ये हमने स्टार्टअप्स के लिए स्टार्ट किया है, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हेलो participants, you have any other questions? Still, hopefully, thank you, Kapil ji, for this wonderful session. Yeah, I think that I will thank to you because you have organized this, और मुझे सबसे अच्छी आपकी बात ये लगी कि BHU की और आपकी, कि हम लोगों को खुद उनको फोर्स नहीं करते हैं, आप लोग जो उनको पूछना, जो उनको करना है वो खुद करें। और मुझे आपका सबसे अच्छा ये लगा कि हम उन लोगों को एक सही दिशा दें, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद वो कहीं के ना हो, 2 साल बाद वो जॉब भी ना कर पाए और ना अपना स्टार्टअप चला पाए। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ, इसको मेरी तारीफ मत समझिएगा, मजबूरी है बताना, वरना मैं बताता नहीं। आप BHU में पिछले 6 साल के दौरान इनोवेशन का एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया हूँ, और उस सिलसिले में बहुत सारे इनिशिएटिव लेके बहुत सारी अच्छी चीजें बन चुकी हैं। रिसेंटली NISP लागू हुई है, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी लागू हो गई है, जो टीचर और स्टूडेंट्स के लिए है। तो इन स्टूडेंट्स को और हम फैकल्टी मेंबर्स को खुद बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग खुद का बिजनेस करें, जिसमें मैं जल्दी ही अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ ऑफिशियली, क्योंकि ये बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो कुछ किया नहीं, हम लोग को कहते रहते हैं। तो पहले मैं खुद बिजनेस करूंगा, फिर इन लोग को कहूंगा, और ये बच्चे भी खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी में करा रहा हूं। तो कपिल जी, आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे सुने या जो बच्चे आगे सुनेंगे वो सब लाभान्वित होंगे। हम लोग फिर जरूर आपसे मिलते रहेंगे, और किसी भी तरीके की कोई क्वायरीज होगी तो आपको जरूर परेशान करते रहेंगे। थैंक यू सर, इट्स सो नाइस ऑफ यू। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी।